ایران کو دی گئی مہلت یا دھمکی ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ 28 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا بلکہ اس وقت سب سے بڑی خبر وہی ہے۔ اور دھمکی کیا تھی کہ آج رات پوری تہذیب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں یہ تینوں ملک سیز فائر پر آمادہ ہوئے، اور پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں اب جمعہ کو مذاکرات ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خبر آج ظاہر گزشتہ رات سے ہی چل رہی ہے، اور سب اسی پر بات کر رہے ہیں کہ جناب بالآخر 40 دن کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتوں کے لیے، 15 دن کے لیے سیز فائر ہوا ہے۔ اچھا، سیز فائر پر امریکہ کیوں مجبور ہوا؟ پاکستان کا جہاں بہت اہم کردار ہے ہی، اس میں چائنا کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، دیگر ممالک نے بھی لیکن اس میں حصہ لیا، لیکن پاکستان کا ظاہر ہے کلیدی کردار رہا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ 40 دن بعد اگر ہم بات کریں کہ جناب کون جیتا کون ہارا، ایک طرف سپر پاور امریکہ، اس کے ساتھ بغل بچہ اسرائیل، اور اس طرف تھا جناب ایران۔ اب ہوا کیا؟ لمحہ بلمحہ کتنے یوٹرن، ٹرمپ کے دھمکیاں، تمام چیزیں، اور اس کے بعد جو نتیجہ اب تک کا سامنے آیا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش بھائی بہت شکریہ سر۔ سب سے بڑی خبر آج کی پوری دنیا کے حوالے سے میں تو کہوں گا سب سے بڑی خبر ہے، کیا کہیں گے، کس طرح دیکھ رہے ہیں، کون جیتا کون ہارا، یہ ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک اچھی بات، ایک اچھی خبر 40 دن کے بعد کہ جنگ بندی سیز فائر ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور یہ خوش آئند ہے۔ اس میں خوش آئند اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ثالثی جو ہے وہ اس نے پاکستان کا قد بہت بڑھا دیا۔ پوری دنیا میں ملینز آف لوگوں نے اس بات کو سراہا ہے، مختلف ملکوں میں، جس ملک میں بھی دیکھیں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا، اور یہ خارجی سطح پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے۔ اس میں بڑا کردار ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، کئی راتوں جاگ کے یہ کام ہوا ہے، اتنا آسان نہیں تھا اس کو، ان لوگوں کو بنانا اور ان سے بات کرنا۔ اور آپ نے جیسا کہ کہا چائنا کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ ایران دوسری طرف امریکہ کی گارنٹی لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی مذاکرات کے درمیان ایسا کیا تھا۔ تو چائنا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک سائلنس گارنٹر بن کے آیا اس میں کہ امریکہ نہیں کرے گا، اور اچھی خوشائند بات۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ اس جنگ میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کون جیتا کون ہارا۔ دیکھیں، ایک طرف 2 ایٹمی طاقتیں، امریکہ اور اسرائیل، 2 ایٹمی طاقتیں، سپر پاور، اور ایک طرف ایک اعلانیہ غیر اعلانیہ، اسرائیل کے پاس ہے لیکن غیر اعلانیہ مانتی ہے دنیا ان کو، دوسری طرف ایک لٹا پٹا 40 سال سے پابندیوں میں گھرا ایران، ان کا مقابلہ تھا۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ خیال تھا کہ 4 سے 5 دن میں یہ ہتھیار ڈال دیں گے اور ان کی رجیم چینج ہو جائے گی، اور جو یورینیم ہے یہ ہے وہ سب کچھ لے جائیں گے، اور اس پہ مزید پابندیاں لگا کے کوئی اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے، جو کہ بری طرح ناکام ہوا۔ اب کیا کھویا کیا پایا کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا جنگ سے پہلے کی صورتحال اور جنگ کے بعد کی صورتحال۔ جنگ سے پہلے ابنائے حرمت کھلی ہوئی تھی، دنیا بھر کی ٹریڈ ادھر سے ہو رہی تھی۔ جنگ کے بعد وہ بند ہو گئی، اور ایک سب سے بڑا ہتھیار وہ بن کے آئی۔ جنگ سے پہلے نیٹو بہت قریبی الائی تھا امریکہ کا، اور آج اتنے خراب تعلقات ہیں کہ جو الفاظ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کیے ہیں، ہم صحافی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتے۔ جنگ سے پہلے امریکن نیوی کی ایک متھ تھی، امریکن بحری بیڑا یہ وہ، اور با مشکل اپنی جان بچا کے زخمی ہو کے ان کے بحری بیڑے وہاں سے نکلے، اور وہ مت ختم ہو گئی امریکہ کی۔ اسرائیل کا ڈوم شوم سب دھم ہو گیا، اور جو ریاستیں ان کی قریبی جہاں امریکن بیسز سے، اب یہ سوچنے پہ مجبور ہے، قطر نے تو اناؤنس کر ہی دیا، باقی سوچنے مجبور ہیں کہ یہ وائٹ ایلیفینٹ ہم مزید نہیں سنبھال سکتے، اور یہ اس سے ہمیں نقصان ہے، اور خطے میں امریکہ کا جو بھی اثر ہو سکتا وہ جاتا رہا اس جنگ کے بعد۔ اور
जश्न कहाँ मन रहा है? जश्न जीतने वाली जगह पे बनता है ना। अमेरिका में अगर आज सोशल मीडिया उठा लें, एक्स उठा लें, कोई उठा लें, जो ट्रम्प के साथ हो रहा है, उनके अपने मुल्क के लोगों जो कर रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं, वो तो खुली तनकीद कर रहे हैं, ऐसी तनकीद, लूजर और ये और वो, उनके खिलाफ 25वीं तरमीम की बात हो रही है। इधर तो याहू के लिए इसराइल में जो बात हो उनके रही है, जर्नल्स के जो तारीफें कर रहे हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की कि जनाब हमने तो ईरान को तहस नहस कर दिया, शिकस्त दे दी, और ये तो ट्रम्प की रहमदिली है कि उन्होंने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए मान लिया। ये अमरीकी वजीर जंग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नए नए बने हैं, जिनको बहुत नीचे से लाके आर्धी पोस्टिंग दी गई है, वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए ये बयान दे रहे हैं, और मगर सूरत दूसरी है। अच्छा, जीता हारे की जो आपने मिसाल दी कि जनाब यार आपने हॉर्मुज़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया, अमेरिका जो गिनवाता है वो ये कहता है जनाब मैंने नेवी फ़िज़ाइया ईरान की ख़त्म की, मैंने बड़े बड़े जो शख्सियात थी इनकी अहम जिनको जो ईरान को चलाया करते थे उनका खात्मा कर दिया। देखिए, उसने सबसे बड़ी गलती की कि पहले ही दिन उन्होंने उनके जो सुप्रीम रहनुमा थे उनको मार दिया, जिसके बाद जो अंदर जो भी साजिशें जो भी ईरान के अंदर थोड़ी बहुत भी अपराइजिंग थी वो ख़त्म हो गई, और ईरान एक मजबूत मुल्क बन के उभरा। वो बजाय उनकी कमज़ोरी बनता वो उभरा, और एक के बाद एक वो डोमिनेट, वो पहले से तैयार थे, जो शहीद होता था उसके बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता था। और कहा जाता है जो अब सुप्रीम कमांडर बने उनके बेटे मुश्तबा खामनेई, उनके बारे में भी ट्रम्प का दावा ये है कि वो शदीद ज़ख्मी है और हमने उसको भी कसर नहीं छोड़ी मारने की, लेकिन ज़ाहिर बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है मारने वाले से। और लेकिन बाहर इस वक्त तक इत्तलात ये हैं कि भाई ज़ख्मी तो है लेकिन ज़िंदा है। हाँ, और वही इस चीज़ को देख रहे हैं, ये भी है। और वज़ीर ख़ारजा और उनके साथ मिलके बाहमी मुशावरत से काम कर रहे हैं, और पिछले 3 साल से वो एक तरीके से कमांड कर रहे थे। सिंबॉलिक तौर पे वो थे, लेकिन पीछे ये थे। और अब ये देखें कि अमेरिका की वो नेवी जिसकी की वो मिसाल देते थे, वो खुद किधर गई? नेवी की तो जंग रही नहीं गई ना, ये जंग टेक्नोलॉजी की दूसरी एक लहर अच्छा, आ गई है, ड्रोन्स की। सर एक नुक्ता इजाफा करूं, क्योंकि अमेरिका में ज़ाहिर उनके कुछ हामी हैं ट्रम्प साहब के, वो इस जंग को इस तरह ले रहे हैं, वो कहते हैं यार एक बात देखिए, हमारे यहाँ अमेरिका का तो कोई एक जगह पर किसी ने आके थप्पड़ तक नहीं मारा, हमारा मुल्क तो बिल्कुल सेफ है, हम वहाँ जाके हमले कर रहे थे तो हमें किस तरह शिकस्त हो सकती है, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। क्योंकि जंग जिस बात को लेके शुरू की गई थी कि हम उसको जल्दी रैप अप कर लेंगे, रजीम चेंज कर देंगे, वो नहीं कर सके, सो कॉल हथियार वो डाल देंगे, अपने हुकूमत जब बंद हुई थी अभी हम खोल देते हैं, उसमें से किसी एक मकसद को लेके वो कामयाब नहीं हो पाए, तो शिकस्त हो गई ना उनकी। और उनके जहाँ जहाँ ट्रूप थे बॉर्डरों पे, उधर खुले हमले हुए, खुले उनको नुकसानात हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके फौजी भी शहीद हुए हैं, उनकी वो जहाज गिरे हैं कि जो कहते थे कि ये कभी डाउन ही नहीं हो सकते। F-35, F-15, F-16 हॉक तैयारे, इनकी जो जासूस तैयार था वो बहुत इनका नुकसान हुआ। और बाकी पता, और जो उन्होंने दावे किए कि हमने 11 सबमरीन, उनकी 11 सबमरीन उनके पास थी ही नहीं यार। उन्होंने बोला हमारे पास 11 सबमरीन रही कहाँ थे, 100 उसकी जो है जंगी वो नेवी के जहाज मार दिए, 100 जंगी जहाज उसके पास होते। तो ये तो इस जंग में भी इंडिया वाली जंग की तरह बड़ा झूठ इसका ट्रम्प की तरफ से वो हुआ है, जिसकी मजम्मत वहाँ से की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ अभी आधी जंग बंदी है, और अब तक जो है ईरान का पलड़ा इसलिए भारी है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग बंद हुई है, और जो उसने 10 नुकात दिए हैं उसमें से अगर 6 भी मान लिए जाए तो वो जंग जीत जाता है। अच्छा, जुमे को पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और ज़ाहिर दोनों तरफ के लोग वहाँ मौजूद होंगे। पाकिस्तान ज़ाहिर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के एजाज़ की बात है, इन 2 सालिसी के ज़रिए सारा कुछ हुआ है। तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुँच चुकी थी दुनिया पाकिस्तान की वजह से, ज़ाहिर मौतरफ इसलिए दुनिया के पाकिस्तान ने बचा लिया। लेकिन अब जुम्मे को हो रहे हैं सर मुज़ाकरात। अच्छा, अब चूँकि आपने जिक्र किया कि मुज़ाकरात के दौरान ही हमलावर अमेरिका हो गया था, खिलाफ वर्जियाँ कर चुका इस तरह की, तो अब ये 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी, उसमें मुज़ाकरात का होना, आपको क्या लगता है कि जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी 2 हफ्तों से चलकर बाद आ गई? आपको लगता है कि जिस तरह आज ही इजराइल ने लिबनान पर हमला कर दिया और वहाँ सैकड़ों लोग शहीद हो गए, तो अमेरिका भी कुछ तरह की हरकत कर सकता है? देखिए, अमेरिका ने इसराइल को जंगबंदी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमेरिका तो मुश्किल अपना फेस सेव करके और भागा यहाँ से भागा है, और गैर अखलाकी जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं, एक्स पे कह रहे हैं कि वो किस तरीके से भागा है, किस तरीके से निकला है, उसने क्या किया।
बहरहाल अमेरिका चाहेगा कि ये वायदा हो जाए, दोबारा उसको इस जंग में ना आए। $1 बिलियन का पर डे नुकसान। पड़ रहा था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो अनपॉपुलर हो गया था, नताज हासिल कर नहीं पा रहा था, एक जगह पे 3 दफ़ा भारी करके अपने वो किए हैं। और इसराइल अच्छा, बगावत भी कहा जाता है कि आर्मी में हुई है क्योंकि बहुत सारे जनरल छोड़ के चले गए। 3 जो है वो तो सामने है, एक तो वजीर दिफा जैसे वजीर जंग कहते हैं, 2 सीनियर जनरल उनके, इसके अलावा भी कई हैं जो बाद में पता लगेगा। और यहाँ तक उनकी कांग्रेस ने कहा कि 25वीं तरमीम की बात हुई, पहली दफ़ा पता नहीं कितने सदरों के बाद इसको हटाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, अगले इलेक्शन में ये बड़ी गूंज होगी इसकी। और जी इसराइल से ये है तवक्को कि अगर वो करेगा तो फिर भुगतेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इन्वॉल्व ना हो और ईरान ने कोई हमला कर दिया, इसराइल ने कोई ईरान पे हमला कर दिया, तो ईरान तो उसका जवाब देगा। दोनों तरफ से जो सबसे ज़्यादा है वो एक दूसरे पे एतबार नहीं है। क्योंकि नवंबर में कांग्रेस के इलेक्शन है वहाँ पर अमेरिका में, और इलेक्शन में वोटर्स को दिखाने के लिए ट्रंप के पास अब तक कुछ नहीं है। या तो ईरान की वो बताएगा कि फतह कर लिया, ये दिखाएगा, या फिर ईरान के बाद अगला टारगेट क्यूबा, क्योंकि नाम ले चुके हैं वो कि अब क्यूबा भी मेरे टारगेट पर है, या तो फिर वो करेगा। देखिए वो उस तरफ करे, कुछ भी कर सकता है वो, जिस तरीके उसने किया आपने देखा। और वो लेकिन ये गल्फ से वो निकला ही निकला, आप समझिए, जो असल इसकी ताकत ये यहाँ थी, यहाँ से उसको बड़ा नुकसान होगा और इसको वो किसी तरीके से भी अपनी फतह करार नहीं दे पाएगा। और अभी ये जो 15 दिन मिले हैं, इस पे मेरा ख्याल है जो ईरान के, जैसे कहते हैं कि रशिया या चाइना या कोरिया या जो भी मुल्क सपोर्ट कर रहा था या कर रहा है, वो उसको ये मुल्क, ये टाइम जो मिला ये बहुत बड़ा टाइम है। इस दौरान वो उसको और मसल्ला और एक्यूपेटेड कर देगा, जो अगर आइंदा जंग की खिलाफ वर्जी हुई तो और मुश्किल। आपको लगता है कि आइंदा होगी 15 दिन के ये सीज फायर के बाद भी? देखिए या सीज फायर चलता नजर आ रहा है आपको? देखिए जिस तरह के ट्रम्प के बयानात हैं, उसके बाद के उसने जो दस्तखत दिए हैं, वो उससे बात हो सकती है, ऐसा नहीं कहा कि नहीं हो सकती, और हम इससे बात करेंगे। और जिस तरह चाइना और पाकिस्तान और ये सब ने सीज फायर कराया है, मैं नहीं समझता अमेरिका दोबारा वो गलती करेगा जो उससे एक दफ़ा हो गई। उसने ये, उनको पता लग गया है कि यार गलती हो गई, ट्रैप हो गए हम, अब इतने से निकले, वो निकल के दोबारा उधर आना उनकी बेवकूफ़ी होगी, फिर ये तवील जंग होगी। ईरान तवील जंग के लिए तैयार बैठा है, अब वो उसके कहने पे तो नहीं हुआ, फिर अपना हरमुज़ बंद हो जाएगा, फिर दुनिया लॉकडाउन की तरफ की वही बातें होंगी और सबका जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया जाएगा।